پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور مقدمے میں 14 سال کی سزا جبکہ اس کی بیوی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مقدمہ ہے کیا اور عمران خان اور اس کی بیوی کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو گئی ہے۔ اس کیس کو حکومت 190 بلین پاؤنڈ جو کہ پٹیائی اس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کوئی اور ویڈیو یا ریسرچ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ٹرسٹ کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک قانونی۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ٹرسٹ کا معنی ہے اعتماد اور قانونی لحاظ سے ٹرسٹ ایک ڈھیلا ڈالا سا خیراتی ادارہ ہوتا ہے جس میں اثاثوں کی ملکیت ٹرسٹی ادارے کے سربراہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ٹرسٹ قائم کر کے وراثت ٹیکس، گفٹ ٹیکس، ویلتھ ٹیکس اور ٹرانسفر ٹیکس سے بچا جا سکتا ہے۔ انکم ٹیکس سے پاک آمدنی اور اثاثے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرسٹ کو تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے اثاثوں کو نسل در نسل بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرسٹ کے اثاثے حکومت کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتے اور ان کا عوامی ریکارڈ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹرسٹ کے معاملات پوری رازداری سے ٹرسٹی کے منشاء کے مطابق طے پا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فاؤنڈیشن ایک زیادہ قانونی ادارہ ہوتا ہے، اس میں فرد کے بجائے تنظیم اثاثوں کی مالک ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جانشینی نہیں ہو سکتی اور اس کا عوامی ریکارڈ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن زیادہ قانونی ادارہ ہوتا ہے جبکہ ٹرسٹ کو عوامی ڈومین میں رکھنے کے لیے فی الحال کوئی تفصیلی قوانین موجود نہیں ہے۔ ٹرسٹ کے قوانین کو جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا ہے تاکہ اشرافیہ اس کے ذریعے ٹیکس بھی بچا سکے، تجارت بھی کر سکے اور عوامی سطح پر نیک نامی بھی کما سکے۔ عام آدمی نے صرف ویلفیئر آرگنائزیشن، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن کا نام سنا ہوتا ہے، اسے ان کے قانونی فرق کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس قسم کے سب اداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جبکہ گاہک لوگ اس فرق سے آگاہ ہوتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ گویا ٹرسٹ کے نام پر عوامی ٹرسٹ یعنی اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ٹرسٹ کے نام پر عوامی ٹرسٹ کو دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کی طرف۔ القادر ٹرسٹ کے معاملات کو سمجھنے کے لیے دو الگ الگ کیسوں کا سمجھنا ضروری ہے جو بعد میں جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیس، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت سندھ نے 2013 میں کراچی کے ضلع منیر کے ساتھ منسلک ایک نیا شہر قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے کراچی حیدرآباد سفر ہائی وے پر 17,617 ایکڑ زمین مختص کی۔ اس کے لیے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا۔ عوام سے 15,000 روپے فی کس کے فارم پر پلاٹوں کی قراندازی کے لیے رقم اکٹھی کی گئی۔ بعد میں ملک ریاض کو وہاں پر بحریہ ٹاؤن قائم کرنے کا خیال ستایا تو حکومت سندھ کی ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین بحریہ ٹاؤن کو الاٹ کر دی گئی۔ ملک ریاض نے بلوچستان اور ٹٹا کے ویرانوں میں خریدی گئی سستی زمینوں کا تبادلہ اداروں کی ملی بھگت سے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر کروا لیا اور بحریہ ٹاؤن بڑھتے بڑھتے 30,000 ایکڑ پر پھیل گیا۔ 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے سامنے یہ کیس پیش ہوا۔ چیف جسٹس نے ان زمینی تبادلہ جات پر ریمارکس دیے کہ چاندی کے بدلے سونا خریدا گیا۔ بحریہ ٹاؤن پر چونکہ آبادی بھی ہو چکی تھی لیکن زمینوں کی الاٹمنٹ اور تبادلہ جات غیر قانونی تھے، لہٰذا اس کا حل عدالت نے یہ پیش کیا کہ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے ملک ریاض اسے پورا کرے۔ ملک ریاض نے تصفیے کے بعد 460 ارب روپے قسطوں میں ادا کرنے کا اقرار کیا۔ اس وصولی کے لیے سپریم کورٹ کے تحت ایک اکاؤنٹ قائم کیا گیا اور طے پایا کہ ملک ریاض 460 ارب روپے کی قسطیں اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا اور وہاں سے رقم قومی خزانے کو منتقل ہوتی رہے گی۔ ملک ریاض یہ قسطیں ابھی تک جمع کروا رہا ہے۔ یہ پہلا کیس ہے۔ دوسرا کیس لندن منی لانڈرنگ کیس۔ دوسرا کیس پاکستان سے باہر برطانیہ کا ہے۔ 2019 کے اوائل میں ملک ریاض کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA نے منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت شامل تفتیش کیا کہ ملک ریاض نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے ایک خطیر رقم برطانیہ منتقل کی۔ ملک
मलिक रियाज ने NCA से भी तस्दीफ़ा किया और 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 60 अरब रुपए लंदन में NCA को जमा करवा दिए। NCA के मुताबिक ये रकम चूँकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया मुंतकिल हुई थी और ये रकम रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, लिहाजा इस रकम को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। ये दूसरा केस है। अब देखते हैं कि दोनों केस आपस में जुड़ते किस तरह है। लंदन से रकम की पाकिस्तान मुंतकिली और वफाकी काबीना का इजलास 22 नवंबर 2019 को लंदन वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलिक रियाज से वसूल की गई रकम पाकिस्तान मुंतकिल करने का ऐलान किया। इससे पहले सितंबर 2019 में शहजाद अकबर की डोरचेस्टर होटल में मलिक रियाज से मुलाकात हुई। बाद में मलिक रियाज की बेटी की शादी पर भी बरतानिया में मलिक रियाज से मुलाकात की। शहजाद अकबर ने ही NCA से कहा कि वो मलिक रियाज से अदालत से बाहर ही समझौता कर ले। इस वजह से मलिक रियाज बरतानिया में सजा से बच गई और रकम देकर सजा से जान छुड़ा ली। रकम की पाकिस्तान मुंतकिली के बाद 3 दिसंबर 2019 को 21 रुकनी वफाकी काबीना का इजलास इमरान खान की सरबराही में मुनाकिद हुआ, जिसमें शीरी मज़ारी, मुराद सईद, शेख रशीद, परवेज खटक, शफकत महमूद, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के अलावा बाकी वज़रा मौजूद थे। शहजाद अकबर ने एजेंडे के आइटम नंबर 2 के तहत एक सील बंद लिफाफा पेश करके काबीना से इसे बगैर कोले मंजूर करने को कहा। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में जारी काबीना के इस इजलास के दौरान मामूल से कुछ हट कर हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को एजेंडा से हटकर एक मामला पेश करने की इजाज़त दी गई। उनके पास एक बंद लिफाफा था। उन्होंने बताया कि इस लिफाफे में एक गैर एलानिया मुआहिदा मौजूद है। ये मुआहिदा करोड़ों पाउंड के तसीफे के बारे में था, जो बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA ने हाल ही में मलिक रियाज के साथ किया था। इजलास में मौजूद एक जरिए के मुताबिक इंसानी हुकूक के वजीर शीरी मज़ारी ने एतराज़ करते हुए कहा कि जब हमें ये मालूम ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है तो आखिर हम किस बात पर मंजूरी दे रहे हैं। हमें बताया गया था कि अगर इसे खोला गया तो इसके कौमी सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं और बरतानवी हुकूमत भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बहरहाल आंखें बंद करके इस मुआहिदे की मंजूरी दे दी गई और बाद में काबीना सेक्रेटरी से कहा गया कि इस रिकॉर्ड को कौमी राज और हसास मामला करार देकर सील कर दिया जाए। इस मुआहिदे के तहत 60 अरब की जो रकम पाकिस्तान की कौमी खजाना में मुंतकिल होना थी, वो रकम सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवा दी गई जिसमें मलिक रियाज बहरिया टाउन कराची की बदनवानी के सिलसिले में किस्तें जमा करवा रहा था। गोया बरतानिया ने जो रकम मलिक रियाज से जब्त की थी, वही रकम मलिक रियाज की मिल्कियत में वापस देकर इसे मलिक रियाज का ही कर्जा उतारने में इस्तेमाल किया गया। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क के साथ और कौमी खजाने के साथ कितना बड़ा गबन किया गया है। ये था वो कौमी राज जिसकी मंजूरी इंतहाई राजदाराना अंदाज में ली कौमी खजाना में आना थी, वो मलिक रियाज का ही कर्जा उतारने में काम आ गई। अब आते हैं अलकादिर ट्रस्ट का क़याम और अलकादिर यूनिवर्सिटी की तरफ। पाकिस्तान का एक इदारा चैरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसके तहत तमाम खैराती इदारे, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर होते हैं। 26 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास यानी 3 हफ्ते बाद चैरिटी कमीशन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्ट डेट जमा करवाई गई। इसके ट्रस्टी इमरान खान, बुशरा बीबी, बाबर अवान और जुल्फी बुखारी थे। अप्रैल 2020 को रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर मौसूल हुआ कि ट्रस्टियों में से बाबर अवान और जुल्फी बुखारी को ड्राफ्ट कर दिया गया है और अब सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। कुछ अरसा बाद बहरिया टाउन की तरफ से मौज़े बरकाला, तहसील सुहावा, जिला जहलम में 458 कनाल, 4 मरले, 58 मुरब्बा फीट जमीन जिसकी मालियत 93 करोड़ रुपए जाहिर की गई थी, वो अलकादिर ट्रस्ट को मुंतकिल कर दी गई, जबकि इसकी असल मालियत तकरीबन 9 अरब रुपए बनती थी। फिर अलकादिर ट्रस्ट अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए डोनर बन गया और इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अलकादिर ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम रजिस्टर कर लिया गया। बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी अपनी ही यूनिवर्सिटी की तामीर का इफ्तिताह किया। डोनेशंस भी खूब इकट्ठा हुई
यूनिवर्सिटी का काफ़ी हिस्सा तेज़ी से तामीर हो गया। अब इस यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर की फ़ीस 1,02,000 रुपये है। एडमिशन फ़ीस 20,000 और सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 है। तसव्वुफ़ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक महंगी तरीन यूनिवर्सिटी कायम की गई है। इसके अलावा हुकूमत का दावा है कि बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब मलिक रियाज ने ज़मीन का एक और टुकड़ा ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल किया है और ट्रस्ट ने इस पर भी अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से महदूद सी तामीरात की है। मजीद ये कि मलिक रियाज ने बनीगाला में ही 240 कनाल ज़मीन फरा गोगी के नाम पर मुंतकिल की, जो कि बकौल हुकूमत बुशरा बीबी के फ्रंट वोमेन थी। गोया 60 अरब की सहूलियत के बदले तकरीबन 10 अरब के असासे हासिल किए गए हैं। अब आते हैं नेब के मुकदमे की तरफ। नेब के मुकदमे का महासल ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट को मुंतकिल होने वाली ज़मीन दरअसल मलिक रियाज की तरफ से रिश्वत है, जो इसको 60 अरब रुपए के फ़ायदा पहुंचाने के बदले दी गई है। अब नेब ने सिर्फ ये साबित किया है कि मलिक रियाज को काबीना में राजदाराना तरीके से माली फ़ायदा पहुंचाना, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाना और अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बहरिया टाउन की तरफ से ज़मीन की मुंतकिली सिर्फ और सिर्फ एक रिश्वत है। इस केस के शवाहिद इकट्ठे करना अब नेब का काम है। इस राब्ते को साबित करना गो नामुमकिन नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर मुश्किल ज़रूर है। अब आते हैं अल-कादिर ट्रस्ट यानी अवामी ट्रस्ट का खून की तरफ। नेब इस रिश्वत को साबित कर सके या न कर सके, लेकिन गैर जज्बाती तौर पर गौर व फिक्र करने वालों के नज़दीक इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर अवामी ट्रस्ट का खून जरूर किया है। इस केस ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, जिसमें से पहला यह है कि इमरान खान को मलिक रियाज से इतनी हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी। मलिक रियाज जैसे प्रॉपर्टी टाइकून को आखिर इतना रिलीफ क्यों दिया गया? क्या बाकी करप्ट लोगों की तरह इसका जवाब भी कौमी मफाद ही होगा? नंबर 2, काबीना की आंखों में धूल झोंक कर जबरदस्ती राजदाराना अंदाज में हसास मामला करार देकर इस फैसले को सील बंद क्यों कर दिया गया? कौमी खजाने को 60 अरब का नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार आखिर कौन करार पाएगा? नंबर 4, काबीना से खुफिया मंजूरी के 3 हफ्ते बाद ही अल-कादिर ट्रस्ट क्यों रजिस्टर करवाया गया? इससे पहले क्यों रजिस्टर न करवाया गया? नंबर 5, फाउंडेशन की बजाय ट्रस्ट क्यों रजिस्टर करवाया गया? नंबर 6, मलिक रियाज से ही इतनी कीमती ज़मीन ट्रस्ट के लिए क्यों हासिल की गई और मुंतकिली में कीमत का झूठ क्यों बोला गया? नंबर 7, ट्रस्टी के तौर पर सिर्फ इमरान खान और उनकी बेगम ही क्यों बाकी रखी गई, बाकी लोगों को क्यों फारिग कर दिया गया? नंबर 8, खैराती यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा क्यों है और इसका माली फायदा किसको हो रहा है? गरज सवालात ही सवालात है। अवामी ट्रस्ट का खून दिन दहाड़े हुआ है। कानूनी पेचीदगियां अदालत में इसे साबित कर सके या न कर सके, लेकिन हर कदम पर मामला ही मशकूक बल्कि आया है। यहाँ एक और अमर काबिल तवज्जो है कि सियासतदानों से लेकर मीडिया और इदारों तक की मोतबर शख्सियात में से कोई भी मलिक रियाज का नाम लेने की जसारत की बजाय एक प्रॉपर्टी टाइकून की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। न जाने क्या वजह है कि कोई खुलकर नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी जानिब अपने लीडर की मोहब्बत में अंधे कारकुन के अलावा हर सोचने समझने वाला खान साहब की इस हरकत और तोशाखाना की हरकत को नजरअंदाज करके क्लीन चीट नहीं दे सकता। अवामी मकबूलियत ज्यादा देर हर मामले पर पर्दे नहीं डाल सकती और पाकिस्तानी सियासत में मकबूलियत से ज्यादा काबिल कबूल होना ज्यादा अहमियत रखता है। माजी की करप्शन की वजह से अगरचे खान साहब सबको दूध के दोहले हुए लगते हैं, लेकिन वो इतने भी दूध के दोहले नहीं है जितना जाहिर करते हैं। हमें खान साहब से न मोहब्बत है न नफरत। मामला मेरिट का है और मेरिट पर ही फैसला करना हक और हकीकत है। पाकिस्तान के हर बाशिंदे को मालूम है कि मलिक रियाज के साथ राह और रस्म रखने वाला बंदा कभी करप्शन से पाक नहीं हो सकता। मलिक रियाज ने जज, जर्नैल, सियासतदान से लेकर सरमायादार तक किसी को करप्ट किए बगैर नहीं छोड़ा है। अच्छा तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने अल-कादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस को तफसीली तौर पर समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये मुकद्दमा समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।